Hello everyone, I welcome all of you for the online class conducted by Suraj Group of Schools, and we are dealing with the seventh lecture on circular motion. And in the last class, I had given you a question for your homework. I know you have attempted this question, but still I have solved this question and taken a photograph so that we can save our time. So you can see here, omega we have to find for when no friction is needed, and omega maximum for no skidding and omega minimum for no skid. So if you see the diagram, when the block is at this position, the diagram will be made like this. A block is placed here, making angle theta, a tangent at this point, making angle theta with the x-axis. So what happens? This n sine theta, here the n sine theta will be there. N sine theta is providing what? Centripetal force, which is m omega square r, and n cos theta will balance. N cos theta will balance the mg. So tan theta we will be getting omega square r by g. Here no friction I have considered. It means the angular frequency, angular velocity corresponding to this is for what? No skidding. Under root g tan theta by r. And in the second case, we have to find the omega max. Omega max means the maximum value of omega for which this block will skid out. Means as we increase omega, the tendency of this block will be moving upward, up this hemispherical section. So if we increase the omega, then the friction will act in the opposite direction mu n. So here again you can see n sine theta and friction into cos theta. Mu into n is the friction, and its component along this centripetal direction will be what? N cos theta, n sine theta plus mu n cos theta will be providing what? M omega square r, and this will be the omega corresponding to the maximum value of angular velocity. And in this case, n cos theta will be upward direction, and this mu n sin theta will be in downward direction. So these two will balance the weight. So dividing these two, you can rearrange, and the maximum value of omega you will be getting this. And for minimum value of omega means what? Without skidding, means just you have applied the omega for which the block will try to skid. So the tendency for minimum omega for the block will be to skid down the incline. So the friction is taken here up the incline, and mu n sine theta, n cos theta this time, both of these two will balance the weight. And now n sine theta, this n sine theta minus mu n cos theta will balance, it will provide the required centripetal force. So the omega corresponding to this will be like, you can divide these two and rearrange. Okay, so what is the range of omega for no skidding? If no skidding is allowed, then the omega that you should choose must lie between this minimum value of omega and maximum value of omega. So this is the question which I have given you yesterday in the homework. Okay, I have a very important announcement for everyone. Okay, so today we have another question like this. Suppose you have a path in this way. Okay, and the object moves, and a block moves, or a trolley, whatever you want.
right now at position A, then it goes to position B, then it comes to the position C, then it goes to the position D. Any curvilinear path on which this block is moving with constant speed, okay, with constant speed means the magnitude of velocity at each and every point here is v, okay, and at this position it makes the angle theta with the horizontal, and here also it is given that this makes angle theta with the horizontal. Now you have to write the equation, write the second law for each point. हर पॉइंट के लिए आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जो इक्वेशन होते हैं वो लिखना है। देखिए मैं इसको करता हूँ, आप समझ लो, बहुत अच्छी बात होगी कि आप समझ लें। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट पे इसका एफबीडी बनाओगे तो नॉर्मल इधर को, वेलोसिटी इसके पास इधर है mg इस डायरेक्शन में। अब mg के ही डायरेक्शन में m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज m इंटू v स्क्वायर बाय r ये दिया गया है इसका, ये दो हेमिस्फेरिकल सेक्शन है, इसका रेडियस दे दिया गया है आपको, दिस इज कैपिटल R. So what will be the equation written for this A? The N minus mg will provide what? Required centripetal force. This is the equation number A for the point A. Oh sorry, I have written it wrongly. गलत हुआ है क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? तो कॉनकेव साइड में, ये मैं लिखा हुआ नोट में। तो कॉनकेव साइड का फोर्स नॉर्मल और mg में कौन बड़ा होगा? mg बड़ा होगा, mg माइनस n नॉर्मल एट a, एंड a लिख देता हूं मैं, जो भी हो। आपको तो एनालिसिस समझने से मतलब है, अभी मैं वैल्यू कुछ नहीं ले रहा हूँ, मास की, वेलोसिटी की, रेडियस की, आप इसको समझ लो कैसे इक्वेशंस को लिखते हैं। अब आप बी की बात करूं, बी पॉइंट पे मैं बी ब्लॉक के लिए लिखना चाहूँ तो क्या होगा? बी ब्लॉक कहीं इस तरीके से है, और आप देखो जब ये मूव कर रहा है, डायग्राम देख लेना, नो नो बी इज नॉट लाइक दिस, बी इज लाइक दिस, यू सी, ये है बी, और बी का हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लो थीटा, ठीक, तो ये एंगल क्या हो गया? थीटा। नॉर्मल किधर को होगा? इस डायरेक्शन में एन बी, और ये क्या आ जाएगा? एन बी साइन थीटा, एंड दिस इज एम जी, और ये क्या है? एम जी कॉस थीटा, है ना, एम जी कॉस थीटा। एक सेकेंड रुकना, एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल के इस कॉम्पोनेंट का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, इसके बिना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखो आपको क्या करना होता है, सर्कल आइडेंटिफाई करना होता है। सर्कल किधर को बनाएगा? ये इस पॉइंट का सर्कल कहीं इधर होगा ना, नॉर्मल, टेंजेंट के नॉर्मल ही तो होता है सर्कल से रेडियस अगर ये मिला दो तो ये नॉर्मल के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही यहाँ पे एम जी कॉस थीटा है, और प्रोवाइड कौन करेगा इसको? एम जी कॉस थीटा माइनस एन बी will provide this block a centripetal acceleration which is v square by r. ये आ गया बी पॉइंट का सॉल्यूशन। सी पॉइंट बहुत ही आसान होगा, फिर से सी पॉइंट के लिए डायग्राम बनाऊं मैं। नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ एनसी, एमजी होगा डाउनवर्ड, और इस बार सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, दैट इज v स्क्वायर बाय r। क्योंकि देख लो जो ऑब्जेक्ट सी का पोजीशन है उसके लिए सेंटर किधर को होगा? कॉनकेव साइड में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इक्वेशन? अब ऊपर की तरफ है
नेट फोर्स, तो NC माइनस mg लिखना पड़ेगा आपको, mv²/r. This will be the equation for C point. Now come to the D. For D point, if you want to write the equation, then D appears like this. Its center will be in this direction, which is what? mg sin theta, and the normal at this point, suppose NB, and according to the curve we see, if you see this diagram, what will be the direction of this radius center of curvature? In this way. So ND will be dominating here, and the centripetal acceleration will be in this direction, which is v²/r, because the object is moving with e. So the equation here will be written as ND minus mg cos theta equals to mv²/r. This is option. This is equation for fourth position. So very basic analysis, very important analysis. The next one is further more important. This is more important. You can expect this question directly in your examination, whatever I am going to write here. A ring on horizontal table. A ring is placed. A ring is on placed on horizontal table. Okay. Any ring we have which is placed on horizontal table. And now the mass per unit length, the mass per unit length of the ring. Wait, Shubham, don't raise your hand, I will come to you. Mass per unit length of the ring is lambda, given, starts rotating या फिर rotates, ये already rotate कर रहा है, rotates with omega. Omega is the angular velocity. Find the tension in the ring. Find the tension in the ring. You have to find the tension in the ring. Okay. If we see this question, this is a very important question. Very first, you must know. कोई भी एक रिंग है जिसको की प्लेस किया है हमने टेबल पे. Okay. Any ring we have which is placed on the table horizontally, और इसका मास पर यूनिट लेंथ मतलब लैम्डा. लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. अगर टोटल मास m है तो रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा? आप मत हैंड रेज करो, आई हैव गिवन यू द टाइम. जब मैं स्टार्ट कर दिया तो आप कुछ मैसेज करने का प्रयास मत करिए. तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है. देखो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, डिस्टर्ब नहीं करना होता है ऐसे डिस्कशन के टाइम में. ठीक, लैम्डा इसका मास पर यूनिट लेंथ है, उसको मैं ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर देता हूँ. तो आपको पूछा गया है यहाँ पे टेंशन क्या होगा ये बताओ. अल्टीमेट क्वेश्चन कहा जाता है ऐसे क्वेश्चन. ध्यान से समझते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे. अगर आपको कुछ इशू है कि पिछला स्लाइड दिखाऊं तो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, आप बैठ के पूरा देखा करो. चैट ऑन कर देता हूँ, यूजफुल मैसेज आने चाहिए, फालतू मैसेज बीच में मत करना, डिस्टर्ब होता हूँ मैं. चलो देखो यहाँ पे ये कोई भी रिंग है मेरे पास. आवाज क्लियर नहीं है तो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, बाकियों का तो मैसेज नहीं आया है. ओके, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि आपको आवाज अच्छे से पहुंचे. चलो चलो देखो सवाल समझो. यहाँ पे एक रिंग है जिसको कि ओमेगा से मैं घुमा रहा हूँ. ठीक, इसमें टेंशन डेवलप हो गया होगा इस रिंग में. कैसे टेंशन डेवलप हुआ होगा?
से रिंग है तो इसका कुछ सेंटर होगा, कुछ रेडियस भी होगा। रेडियस मान लो आर, अपनी मर्जी से, कुछ नहीं दिया है तो आर मान लिया मैंने। इसका कोई भी छोटा सा सेक्शन यहाँ पे ये वाला कंसीडर करो और देखो कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि पहली बार आप ऐसे एनालिसिस देख रहे हो, आगे एग्जाम में ही आएगा डायरेक्ट, बीच में कहीं नहीं। यहाँ से मैंने एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर किया है। सपोज कर लो कि मैंने ये dx कंसीडर किया, दूसरा सेक्शन, और ये एंगल यहाँ पे बना रहा है d थीटा, और इस पे जो टेंशन एक्ट करता है, टेंशन देखना, इधर को t और इधर को भी t, टेंशन दोनों तरफ t। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंशन ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, इधर को भी जो टेंशन है वही अपोजिट डायरेक्शन। टेंशन तो क्या है, इंटरनल फोर्स है, और एक्शन और रिएक्शन में अपियर होता है, ऐसा होगा। तो मैंने थोड़ा सा सेक्शन तो बहुत छोटा कंसीडर किया है dx लेंथ का, लेकिन मैंने कम से कम तो इतना तो होना चाहिए जो कि मैं देख सकूं। ओके, तो इसको मैं अगर यदि एक फ्रेश डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं थोड़ा सा इस dx को क्या करता हूँ कि जूम करता हूँ। देखना, इसको मैं थोड़ा जूम करूं तो मुझे कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, और इसके जो एंड्स हैं, इसके एंड मान लो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहे हैं। द एंड्स ऑफ दिस आर्क making angle d theta at the center, and what we have seen, the tension, suppose here it is t, then here also it will be t. So if you see a dx element of this ring, section of the ring dx which makes angle d theta at the center. So the forces acting, the tension at this point of the string has components. If you consider this total angle d theta and bifurcate this angle equally, then it is d theta by 2. If this is d theta by 2, then this one will also be d theta by 2. Then this angle will be what? 90 degree minus d theta by 2. You have to see this value of angle. इसको मैं फाई लिख देता हूँ, ज्यादा गंदा नहीं करेंगे डायग्राम को। फाई क्या आ रहा है, 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाय 2, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, डी थीटा बाय 2। सो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, टी कॉस डी थीटा बाय 2, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का क्या आएगा, फिर से सेम एंगल आप एनालाइज करना खुद से, बहुत ज्यादा आइडिया दे चुका हूँ मैं आपको। टी कॉस टी थीटा बाय 2, और इसके दो वैल्यू टेंशन के इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये वाला होगा टी साइन डी थीटा बाय 2, और ये भी होगा टी साइन डी थीटा बाय 2। अब इस रिंग को मैं घुमा रहा हूं, यहाँ पे इस रिंग को अगर मैं घुमा रहा हूं, इस पर्टिकुलर सेक्शन का, ये जो छोटा सा सेक्शन हमने कंसीडर किया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का आप देखो अगर यदि, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसके लिए इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ, और क्या कितनी होगी वैल्यू। तो ये dx सेक्शन का सपोज करो कि मास dm है, तो आप ये वाला फोर्स क्या लिखोगे, इस dx सेक्शन पे फोर्स क्या लिखोगे, df इक्वल्स टू
dm टाइम्स ओमेगा से रिंग को आप रोटेट कर रहे हो ओमेगा स्क्वायर आर, ये लिखना होगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब कि ये जो टेंशन है, जो टेंशन है यहाँ पे, इसके ये वाले जो कंपोनेंट है टेंशन के, ये तो टी है, टेंशन टी, टेंशन टी। इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है इस टेंशन का, वो क्या है, टी साइन डी थीटा बाई टू, और ये भी टी साइन डी थीटा बाई टू। और ये दोनों मिल करके इस dx लेंथ, जिसका कि मास हमने dm कंसीडर किया है, इस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि वैल्यू कितनी होगी, dm स्क्वायर dm ओमेगा स्क्वायर आर। ये रफ है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर यदि आता हूँ वापस, तो क्या लिखूंगा, 2t साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू dm ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ से 2 और अब साइन डी थीटा बाई टू, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि डी थीटा वेरी स्मॉल, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा dx सेक्शन कंसीडर किया है, हेंस आप साइन डी थीटा बाई टू को किससे रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस दिस बाय डी थीटा बाय टू। जब आप इस इक्वेशन में साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करोगे, इट विल कम डी थीटा बाई टू, और ये आ जाएगा dm ओमेगा स्क्वायर आर। फर्दर आपको थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे करना पड़ेगा, लाइक इस dm मास की वैल्यू मैं पूछूं आपसे, तो क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू जितना लेंथ हम कंसीडर किए हैं dx। ओके, सो dm को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, लैम्डा dx से। और जब आप इस आर्क को देखते हो यहाँ पे, जो कि एंगल यहाँ पे डी थीटा बना रहा है, और ये dx है और रेडियस r है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, dx इक्वल्स टू r डी थीटा। क्यों लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू l बाय r का फॉर्मूला यूज किया। इसका मतलब पूरे के पूरे dm मास को मैं लिख दूंगा लैम्डा r डी थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो काफी परेशानी होगी। मैंने बहुत ज्यादा ओपन करके बता दिया, शायद ऑफलाइन क्लास होती तो मैं इतना नहीं बताता। उम्मीद करता कि आपको आ रहा है। ये 2 और 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ से क्या लिख सकते हो इक्वेशन, टी डी थीटा। वेट शुभम, आई विल कम टू योर डाउट्स। और अगर वॉइस के साथ प्रॉब्लम है तो आप अपना नेटवर्क चेक करिए। डीएम को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, लैम्डा आर डी थीटा, और फिर जो बचा है वो लिख दो ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से डी थीटा कैंसिल कर दो, तो टेंशन क्या आ जाएगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास टेंशन की वैल्यू। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इक्वेशन, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। जो गिवन टर्म था वो हमने फाइंड कर दिया। ठीक, अब इसका देखो वेरिएशन। इसमें वेरिएशन क्या होता है इस क्वेश्चन में, वेरिएशन मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसके सॉल्यूशन को, इसके वेरिएशन को समझिए पहले। ये क्या होता है कि आपको ये वेलोसिटी दे दी जाएगी, इसमें ये जो घूम रहा है इसकी वेलोसिटी दे दी जाएगी, तो टेंशन पूछते हैं या फिर टेंशन दे दिया जाएगा, टेंशन दे दिया जाएगा और वेलोसिटी भी पूछ लेंगे कि किसी इंस्टेंट पे इसकी क्या वेलोसिटी। तो आप टेंशन को क्या लिख पा रहे हो यहाँ से, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ओमेगा इंटू आर क्या होता है, v होता है। तो यहाँ पर से आपको कभी वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है, अंडर रूट टी बाई लैम्डा, ये भी पॉसिबल। पहले तो आपने, आपसे जो पूछा गया वो आपने जवाब दे दिया यहाँ पे, दिस इज द टेंशन which will be existing in this string।
Now I will switch on the chat.